So my name is Akashdeep, and currently I'm working with Google in the UK. I just moved 1 year back. एक साल complete हुआ अभी just this week itself. And before that, I was working with an agency called Group M for a year in digital marketing. उसके पहले 2014, I did my MBA from MICA. It's 9 years now. Okay, it's 9 years. And before that, I did my engineering from Lucknow. There is a college called Babu Banarsi Das National Institute of Technology and Management, Chinhat, Lucknow. जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया. उसके पहले आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम CMS लखनऊ, गोमती नगर, 11th-12th. उसके पहले मैंने गोरखपुर करके एक शहर है लखनऊ के पास, वहां से मैंने 10th तक की पढ़ाई की. एंड दैट्स वेयर माय पेरेंट्स लिव. So that's a little bit of my summary. Currently, I'm working as a customer success lead, which is a very specific role for Google Ads in UK. तो मैं बहुत सारे कुछ बड़े clients के साथ उनके लिए Google Ads, how to make it easier, I work with them on that, etc., etc. And yeah, that's pretty much it. Then we'll talk more about me in the next few minutes after you guys have given me an introduction. And I'll also okay, 3 चीजें जाननी है मेरे को, ज्यादा नहीं जानना, मैं याद नहीं रहेगा. नाम दिख रहा है, फिर भी बोल देना, मतलब वरना awkward हो जाएगा इंट्रोडक्शन बिना नाम के. I can see the name, but just tell me your name. Tell me the colleges that you have. Okay, tell me the one college that you want to go to apart from the calls that you have from. Okay, well, from the set of colleges that you have a call from, just tell me the aspirational or the best college you want to go to. And third thing, tell me what you want from this session. So मैं कुछ prepare करके नहीं आया हूँ. मैं usually नहीं जाता हूँ prepare करके. Usually in the entire year, I take 3 or 4 classes only. I don't take more than that. Mostly the classes are around this season. So every year the students change. I don't repeat. There's no way to repeat the students unless किसी का कई सारे attempt हो. So I will need to know what you guys require. अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपके क्या सवाल हैं, आपके पीयर्स के क्या डाउट्स थे जो आप भी नहीं सॉल्व कर पाए जबकि आप स्मार्ट हो अपने पीयर्स में. तो वो मेरे से कोशिश करो पूछने की. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव अ कंस्ट्रक्टेड और लॉजिकल और एन आंसर व्हिच यू कैन बिल्ड अपॉन. बस इतना जानना है मेरे को, ठीक है? तो विनय से स्टार्ट करते हैं. गो अहेड विनय. Hi Akash, my name is Vinay Dayama and I am from Sri Ganganagar, Rajasthan. Right now, my dream college is Niti Mumbai because that's the only good option left for me. And I did my graduation. I did job in Alfa Laval India Private Limited for 9 months. Okay, and what do you want from this session? I want to learn like if you are also engineer, how to tackle technical question. That's the weak part of mine. That was the weak part. That's why I went for MBA. Anyways, no. Okay, I'll try my best with that. Thanks. Okay, Poojan, go ahead. Good evening, Akash sir. I'm Poojan Upadhyay. I'm from a city called Junagadh, which is in Gujarat. And I have done my graduation in Bachelor's of Hotel and Tourism Management. And I have about 11 months of work experience as a guest service associate in different hotels and lounges. And I am expecting calls from Tapmi and XIM Bhubaneswar. And I have got an interview call from IBS Hyderabad. So these are the colleges that I am targeting. And in this session, I'd like to, this is my first session. I'm just started to prepare for GDPI as I got the calls recently. So I have no idea that what will, I have no idea like how would I ask you anything or anything. I'm not prepared anything. I think the others will ask some questions and I think that will be my questions and they'll answer. That they'll get answered eventually. But you have paid some money now. Then Yes, you have the right to ask. You should ask something. ठीक है, जब तक बाकी लोग they are giving their introduction, think of what you want to. Okay, I'll come back to you. Rudra. Good evening, sir. My name is Rudra Pratap Nirvana. I wish to get into Tapmi, and from here I would like to learn as to the questions that can be asked if I say that my specialization, the specialization I want to pursue is marketing, sir. Okay, thanks, Rudra. Harshit. Good evening, sir.
My name is Arshit Dave, and I have received calls from IIM Shillong and ABM program of IIM Lucknow. So I'm looking forward to that. And my expectation is that I want a concrete answer for why MBA, because we can't actually come up with a good answer to satisfy what sir wants from us. बट YMBA पूछते हैं क्या अभी भी सारे इंटरव्यूज में? ओके, सर पूछते हैं तो फिर ठीक रोहतक है। में तो नहीं पूछा अभी, वो पूरा जीके बेस्ड था। उसमें तो टेल मी अच्छा ठीक समथिंग है, अबाउट योरसेल्फ। अर्पित इज नॉडिंग, अर्पित से पूछूंगा मैं भी। कूल। नैनिश? Hi sir, my name is Nanish Veer Singh. I am also from Gorakhpur. I have done my graduation in humanities and I'm looking forward to get into SIBM Bangalore. And sir, my query is that I'm from humanities. I have done my graduation in humanities. So I'm not getting the answer that how humanities will help you in MBA. Okay, So that's my question. you are in the best position till now. Okay, thanks Nanish. Parijat? Very good evening, Akash sir. My name is Parijat and currently I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. And I believe the best college for me would be, as of now, I am Rohtak because I have calls from IMT and I am Rohtak. So I am Rohtak is the best one probably I would go for. And Okay, the thing I'm looking from today's session would be like your outputs, like how has been your journey for the MBA and what we can do like in the future as well. got it. Thanks पारिजात। अच्छा, पारिजात का मतलब बता दो मुझे बस। Sir, Parijat is basically resembles a huge tree which is based in Barabanki, Uttar Pradesh, and a flower it came from the one what we say Samudra Manthan between Devtas and Asurs. So that was one of the rats which came out as Parijat, and there is a flower also associated with that tree which usually comes out in certain seasons. So whatever we wish for, that is something that happens certainly. So that चलो, is एक क्वेश्चन का आंसर तो तुमने अभी दे दिया, ये पूछा जाएगा तुमसे। थैंक्स। शंख? Hi Akash, my name is Shank Gupta, and I have calls from IMT Ghaziabad and NMIMS Mumbai. So those are the colleges that I'm targeting. I am also expecting like IIT Kharagpur. That is I'm very excited for that option. And yeah, from this session, I would just like to know like a couple of things that happen after we join MBA. Like what's like specializations, what branches are there, or what goes on in the first year. So that is something I want to know. ठीक है, got it, Shank. And you are also an engineer, I'm guessing. Yeah, I have computer science background. Okay, Ankita? Good evening, sir. My name is Ankita Srivastava. I am from Lucknow. I have received calls from IMT and IIM, and from this session, I want to learn that how we should give answers of questions like what are your long-term goals and how to tackle with your skill set, like how to answer like what are your skills, because basically we have the same answers like communication, and so I want to learn something different, like how to make a stand from the group. So yeah. Okay, thanks Ankita. Yes, sir. Arpit? Good evening, everyone. My name is Arpit Tripathi. I have calls from a few IIMs. I would like to convert IIM Rohtak, Raipur, Udaipur. I would like to gain from this session that I would like to learn something about the specialization in which we can go for. Other than that, what are the questions that we can expect as some of the interviewers ask that what are the specialization you would choose right now? So what are the questions that we can expect from them regarding that? Got it. Thanks, Arpit. Kansha? Good evening, sir. I am Akansha Shrivastava. I am from Lucknow. I have completed my graduation from DSMR University. Right now, I'm targeting NMIMS Mumbai. I would like to learn about how to give answer of question like what would be your specialization, because we are still naive and we don't know in which specialization we want to go. All right. Specialization को लेकर काफी टेंशन है, कन्वर्ट को लेकर टेंशन हो भी। Harshit just joined.
और इसी नहीं, हर्षित का हो चुका है. Everybody is done, I think, right? Anybody remaining? सबका हो गया, I think. Okay, great. Awesome. And how many are engineers? Okay, not all are engineers, which is great. Okay, perfect. All right. So good introductions, guys. I'm assuming because most of you said that specializations के बारे में discuss करना है या क्या questions आते हैं या MBA life कैसी होती है, ठीक है? तो then I'll take it the other way around. पहले तो मैं फिर वो वाले सारे क्लियर कर देता हूँ कि MBA में होता क्या है और MBA क्यों कर रहा होता है, और MBA करने के लिए how much is average fees these days? NMIMS का कितना है मुंबई का? Around 25 to 30 lakhs. 25 to 30 lakhs. और IIM उसका कितना है, रोहतक का, उदयपुर का? Sir, above It 60. is around 20 to 25, everything चलो can be. 25 लाख कर लेते हैं. And anybody who how many of you are working or have worked? Okay, not Sir, like most of you. Okay, few of have. ठीक है. The reason why I'm saying is because डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये हमेशा जान के जाना चाहिए MBA करने के लिए. सी यहाँ तक आना, कुछ अटेम्प्ट करना लाइफ में, that's important. Anybody who has a problem with Hindi? Hindi is okay? Okay, perfect. हाँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट MBA कर रहे हैं सोच के इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ROI का गेम है. ओके, MBA तो कर रहा है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, हम समझ रहे हैं. बट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, जैसे म्यूचुअल फंड सही है पर लॉन्ग टर्म में सही है, उसी तरह से MBA भी लॉन्ग टर्म में सही है, उसके लिए ROI समझना जरूरी है इसका. ठीक है. For anybody who's putting in 20-25 lakhs and 2 years of your life where you could be paid let's say 5 lakhs a year as salary, तो almost आप 35 लाख रुपीस लगा रहे हो. ठीक है, 10 लाख रुपए की सैलरी और 25 लाख रुपए अपने पेरेंट्स का या अपना या लोन का लगा रहे हो. और लोन का है तो फिर obviously it can be a little more also. So it's a long game. Okay, you are going in not for the immediate benefits, you are going in for the long term benefits. For a lot of you, I can understand it could be a method of switching कि क्या कर रहे थे अब ये करेंगे, और also like a launch pad into कि अब नहीं पता था क्या करेंगे, आगे पता है क्या करेंगे, यहाँ से I'll build upon. And most of us like me also, we go to MBA for placements. Okay, because India में job situation ऐसी है कि it's not as easy without a tag against your name to get a good job, which are all legit reasons. But हाँ, ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि why MBA आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो. आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, आप इमीडिएट ये जो लॉन्च पैड की तरफ से इसको यूज करना चाहते हो या फिर केवल स्विच के लिए, ये दिस विल डिमिनिश. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीटेक फर्स्ट ईयर. फर्स्ट सेमेस्टर तो सब इजी लगता है, अच्छा लगता है, फिर लेकिन सेकंड सेमेस्टर आते आते आपको रियलिटीज पता चल जाती है कि आपको टेक में जाना है या नहीं जाना है, या दिस इज द फील्ड आई वांट टू कंटिन्यू, मेरे को कोडर बनना है कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है एंड सो ऑन. तो ये क्लैरिटी, maybe you guys are too young for it, but start thinking about it. And when I say start thinking about it, it means ki build your perspective from the fact that जो आपको हायर करेगा वो आपको क्यों हायर करेगा. आपको ऐसे सोचना है, ठीक है. आपको ये सोचना है कि आपको वो 5 कंपनीज भी सोचनी है अगर आप MBA क्रैक कर लेते हो, कि वो 5 कंपनीज आपको क्यों हायर करेंगे, आपका क्या स्किल सेट ऐसा होगा जो मार्केट में नहीं है, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा जो किसी और के पास नहीं है, जिसके लिए वो आपको हायर करेगी. ठीक है, क्योंकि आप करियर बनाने के लिए MBA कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए MBA नहीं कर रहे हो. द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज दैट ग्रेजुएशन इज नॉट अ करियर रिक्वायरमेंट. ग्रेजुएशन आप बेसिक भी कर सकते हो, लेकिन MBA जब आप करते हो तो इट्स, सॉरी आप उल्टा बोल दिया, ग्रेजुएशन इज एन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, बट मास्टर्स आप करते हो करियर बनाने के लिए. ठीक है, तो आपको अब ये अपना पर्सपेक्टिव ये चेंज करना होगा कि जो आपको हायर करेगा इवेंचुअली, प्लेसमेंट होगा जब आपका कैंपस से होगा या ऑफ कैंपस होगा या आप स्विच करोगे, तो आपको किस बेसिस के लिए हायर करेगा. ठीक है, आई अंडरस्टैंड बहुत दूर की बात करो, बट आप सब नहीं पूछा था वाई MBA. इसलिए MBA करना है, हमें करियर के हिसाब से MBA करना है. ओके, MBA की जो पढ़ाई है, मेरे को पर्सनली इट्स बीन 9 years, मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुका है आज की डेट में. MBA के दम पे, MBA की पढ़ाई के दम पे, ना मैंने वो जॉब क्रैक की थी जो कैंपस से मुझे मिली थी, ना मैंने जो स्विच किया वो किया. वो सारी चीजें ऑन द गो जो सीखते गए ऑन द जॉब, उसके दम पे हुई, या अपने आसपास जो नॉलेज इकट्ठा की, खुद को अपस्किल करने की कोशिश की, उसके दम पे की. ओके, MBA की पढ़ाई इज नॉट द एंड गेम.
मतलब आप टॉपर हो जाओ और आपकी प्लेसमेंट ना हो कैंपस से, क्या फायदा? ये तो ग्रेजुएशन के साथ भी वैलिड था और एमबीए के साथ भी वैलिड है। गोल्ड मेडल इन ग्रेजुएशन, गोल्ड मेडल इन IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद में चलो प्लेसमेंट हो जाएगा, लेट्स से IBS हैदराबाद की बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा बैच है उसका, 1000 का बैच है शायद। से आपकी कैंपस से अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई और इतनी ही हुई जितनी आपकी पहले बीटेक के बाद लगी या ग्रेजुएशन के बाद आपकी जॉब लगी, तो आपका तो ROI खराब हो गया, राइट? सो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो यानी कि जो लर्निंग है वो चलती रहनी चाहिए। और YMBA का जो अभी करंट आंसर आप दे रहे हो, वो या तो दो तरीका आप दे सकते हो कि या तो मैं आपको बना के बता दूं कि हाँ ऐसा ऐसा दोगे तो दिस विल हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आंसर और आप पहुंच जाओगे, somehow you will make it। या फिर एक ऐसा आंसर जो आप रिलेट कर पाते हो या आप एक्चुअली करना चाहते हो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट शुड नॉट बी द ओनली वे आउट फॉर यू। और आप अपने आसपास भी देख लेना, आपके कजिन्स होंगे, आपके भैया लोग होंगे, फैमिली में लोग होंगे जो बीटेक करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोगों ने MBA नहीं किया है, मेरे आसपास भी। इनफैक्ट गूगल में तो ज्यादा इंजीनियर ही है, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ इंजीनियर ज्यादा है और बहुत ज्यादा तेज है। वो IIT के हैं, NIT के हैं, बिट्स के हैं, बाहर से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो उनके मुकाबले मैं फिर अपने आप को इंफीरियर समझ सकता हूँ, राइट? बट उनको लगता है यार तुम्हें तो मार्केटिंग समझ में आती है, तुम्हें पैसा समझ में आता है, तुम्हें मेरे धंधा समझ में आता है, मेरे को तो बस कोडिंग आती है। और मैं सोचता हूँ अरे यार कोडिंग आती है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। लाइक Shank will relate probably because he's from computer science background. So the kind of things you can have with education is you can either be a builder, and by building I mean अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप मशीन्स बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो शायद आप कंप्यूटर्स वगैरह सॉफ्टवेयर क्या होता है वो चिप बनाओगे, माइक्रोचिप बनाओगे। आप कोडर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे और आप बिल्डर हो। पर एट द सेम टाइम हर कंपनी में अगर प्रोडक्ट है या सर्विस है तो उसको बेचने वाला या उसको रन करने वाली जो टीम होती है सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, ठीक है? तो कुछ लोग का आपका पैशन वो है, सेल्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस कह लेते हैं, जो कि MBA वाले होते हैं मोस्टली। ओके, इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं वहां पे, पर उनका जर्नी फिर और लंबा हो जाता है। फिर वो एंड से जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनते हैं, फिर जाके वो उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग वाले साइड पे जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, एक शॉर्टकट कह सकते हो या फिर आप एक पेडिस्टल, एक स्किप पे जा सकते हो कि आप सीधे विदाउट बिल्डिंग स्टफ आप बेचने वाले साइड पे जा रहे हो। सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, मोस्टली ये तीनों जो सबसे फेमस आपके होते हैं। या फिर HR में हो तो वो भी अगेन रनिंग द स्टफ, नॉट बिल्डिंग। यू आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, यू कैन बी बिल्डिंग द टीम्स में भी, बट HR थोड़ा डिफरेंट करते हैं। सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन जो कि कोर होता है, तो आप वो करते हो। तो ये आप अपना आज की डेट पे कोशिश करो कि व्हाट इज योर लाइकिंग, व्हाट इज योर पैशन, आप किस तरफ जाना चाहते हो। एटलीस्ट एक बेसिस आपको मिलेगा बाय MBA आंसर करने का आपका। और मैं इसलिए स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा हूँ और मैं इसीलिए आप लोग से पूछ भी नहीं रहा हूँ कि अपना अपना आंसर बताओ, बिकॉज सबका आंसर अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबका गोल अलग है, सब लोग का करियर में कहाँ आप लोग को लैंड करना है वो सब अलग रहेगा, ठीक है? I'll take a pause here बिकॉज मैंने अभी तो ये कोशिश की आंसर करने की कि आप लोग MBA क्यों करना चाह रहे हो, ROI पर्सपेक्टिव से सोचो, YMBA पर्सपेक्टिव से सोचो। अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर अब इस बारे में बात करूंगा कि MBA में क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि MBA के जो प्रोसेस में आप लोग जा रहे हो GDPI वगैरह में, उसमें क्या होता है। I'll take a pause here. Any follow-up questions, anything that you guys have on your mind? सर ये थोड़ा YMBA का पता है कि बोलना क्या है, बट वो जब बताते हैं ना कि देखो इतने टाइम जॉब करी है, तो फिर बोलते हैं कि और करते जॉब, इतने में क्यों छोड़ दिया। तो फिर इसको ना वो घुमा के लेके जाते जाते हैं। और मेरे साथ मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा कहीं ना कहीं एक मोड पे आके इंटरव्यू डिबेट में बदल जाता है। मेरे को चीजों के आंसर आते हैं तो मैं चाहता हूँ मैं जवाब दूं, पर दिव्या सर बताते हैं कि नहीं जवाब नहीं दे रहा, तू बहस कर रहा है। तो उसको कैसे सुधारूं, क्योंकि मेरे पास जवाब है तो मैं ना नहीं कर सकता। देखो कम्युनिकेशन के जो होते हैं ना, ठीक है, 3 पिलर होते हैं और मैं हर साल हर क्लास में ये बताता हूँ, और हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये सुना भी हो कॉन्सेप्ट, मैं फिर से बता देता हूँ। उसमें होता है आपका कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज, और एक मैं भूल गया अभी बात करते करते, अभी याद आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो खैर कंटेंट और बॉडी लैंग्वेज की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, वर्बल स्किल्स की बात, हाँ 3 हो गए, ठीक है? आपका होता है कंटेंट, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये 3 चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है? आपका तीनों में से एक भी हिला हुआ है ना, तो आप तो आउट हो। अगर आपका कंटेंट सॉलिड नहीं है, यानी कि आपकी फ्लुएंसी नहीं है,
मतलब जो आप बात बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हो, घुमाए जा रहे हो बात को, एक ही बात को 4 बार बोल रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। स्किल्स की आप बात करते हैं, वर्बल स्किल्स की, यानी कि आप पकड़ है आपकी बात में, आप किसी ग्रुप में बैठते हो, जब आप बात करते हो तो लोग सुनते हैं और आपकी बात खत्म होने के पहले बोलते नहीं है, ठीक है, अनलेस कोई जबरदस्ती काटना चाहे, और वो तो फिर यू नो दैट पर्सन इन योर ग्रुप जो सबकी बात जबरदस्ती काटता है पर उसकी बात में दम नहीं होता है, डोंट बी दैट गाय। और तीसरा हो गया बॉडी लैंग्वेज। तो आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, एक एनर्जी एक्सयूड करता है, एक एनर्जी बाहर की तरफ फेंकता है कि आपके अंदर वो है, नहीं है तो कैसे डेवलप करना है, इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब उस रूम में प्रेजेंट हो तो उस पैनल को, उन 2 से 4 लोगों को लगना चाहिए कि ये बंदा इस 160 के, 240 के, 300 के बैच को बेटर बनाएगा। ऐसे सोचो, उनके नजर से सोचना है आपको, पैनल की नजर से सोचो, क्यों लेगा वो, उनको पैसा मिलना है सबसे बराबर, सबसे बराबर पैसा, ऐसा तो है नहीं आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, बिल्डिंग तो चल नहीं रही OLX पे, तो पैसे सब बराबर दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या क्या चाहते हैं, वो एक बैच के मिक्स में 300 लोगों में क्या क्या चाहते हैं, ठीक है, अच्छे सॉलिड बच्चे आए जिनका बढ़िया बैकग्राउंड हो, और आप यहां तक पहुंच गए तो रिटर्न तो निकाल चुके, नंबर वाला काम हो गया सारा आपका, है ना। अब वो ये नहीं बोल सकते ना कि इसका तो इंग्लिश वीक था, कैट में नंबर कम इसलिए नहीं ले सकते, वो तो हो गया ना, वरना शॉर्टलिस्ट नहीं करते आपको। अब आपको वो चीज दिखानी है जो सामने से देख सकते हैं, इसीलिए वो बुलाया उन्होंने आपको देखने के लिए इन पर्सन या वीडियो कॉल पे, जैसे भी, कि वो चीज देखें कि जो रिटर्न में नहीं चेक हो सकती, यानी कि कम्युनिकेशन, ओके। और आप बैच को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो, तो आपको वो पर्सन बनना है जो बैच को इंटरेस्टिंग बनाता है। कुछ लोग के पास वो बाय डिफॉल्ट होता है, एग्जांपल देता हूं, व्हाट इफ आपने आपने मेरे बैच में था वैसे एक डेंटिस्ट, उसने BDS किया हुआ था माइका में, ठीक है, तो वो डेंटिस्ट था और वो मेरे बैच में आ गया, तो उससे भी पूछा गया होगा ना कि भाई डेंटिस्ट हो तुम, BDS किए हो 5 साल का, MBA क्यों करना चाहते हो। उसने कुछ अच्छा आंसर दिया, बट मुझे नहीं पता क्या आंसर दिया, बट वो एक वैरायटी लाता है इस बैच में, वो ऐसा पर्सपेक्टिव लाता है जो कोई नहीं ला सकता। नो डाउट इंजीनियर यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज में है, क्योंकि इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव बहुत ही चना मूंगफली भाव मिल रहा है मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अब आपको उसके ऊपर बिल्डअप ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बैच में पर्सपेक्टिव सॉरी डाइवर्सिटी लानी है, कुछ चीज आपके कंट्रोल में, कुछ नहीं है। खैर, जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, टू आंसर विनर्स क्वेश्चन, कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, एक सूदिंग इफेक्ट देना चाहिए सामने वाले को। जैसे दिव्य सर की बात है, दिव्य सर एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, इसलिए मेरे वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स थे वो। जब वो बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। अलग अलग तरह के स्पीकर्स होते हैं दुनिया में, अब जैसे आप लोग ने शायद यूट्यूब पे देखा हो, अंकुर वारिको करके एक स्पीकर है, मैं उसको बोलूंगा, इवन इफ हिज कंटेंट इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट ही हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑफ स्पीकिंग, ही कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन। आपको वो पर्सन बनने की तरफ सोचना है, ठीक है। आप कहीं किसी से कंपटीशन नहीं करने जा रहे हो, जीतने नहीं जा रहे हो, कोई वहां पे निकल के आपको मेडल नहीं पहनाने वाला है, ठीक है। आप अपने आप को रखने जा रहे हो इन अ वे कि वो बोले कि ये बंदा 2 साल मेरे साथ इस कैंपस में टाइम बिताने के लिए अप्रोप्रिएट है, ये बंदा या बंदी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, आप वहां बात करने जा रहे हो। इट्स नॉट अ पिच, शार्क टैंक नहीं है ये, पिच नहीं है ये कि आपको जीतना है, नहीं, आप जीतने नहीं जा रहे हो, आप पिच करने नहीं जा रहे हो, आप कन्विंस करने नहीं जा रहे हो, आप खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो पूछेंगे आप उसका जवाब कितना कॉन्फिडेंटली देते हो, ये बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है, कि अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो, आप ओवर डिफेंसिव हो रहे हो, आप चीजें रिपीट कर रहे हो, आप उनका फीडबैक नहीं ले रहे हो, ठीक है। अब लेट्स से मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ अपने इंटरव्यू का। तो मेरे से उन्होंने पूछा, मेरे CV में बहुत सारा कंटेंट राइटिंग रिलेटेड चीजें थी, कि मैं मूवी रिव्यूज लिखता था, उस जमाने में ब्लॉगिंग करता था, 2012 की बात हो रही है ना, 11 साल पहले की तो ब्लॉगिंग होती थी उस समय, तो ब्लॉगिंग करता था। तो उन्होंने पूछा, इतना कंटेंट लिखते हो तो आप रीडिंग भी करते होगे। तो मैंने बोला, नहीं सर, ज्यादा बुक्स तो नहीं मैंने पढ़ी हैं, मैंने बस 5 बुक्स पढ़ी हैं। तो उन्होंने पूछा, कौन सी 5 बुक्स पढ़ी हैं। मैंने बोला, चेतन भगत की 5 बुक आई हैं, वो सारी पढ़ी है मैंने। तो मैंने ये जो है उनको बोल दिया। तो मुझे ये बोलते समय लेकिन ये नहीं लगा कि वो मुझे जज करेंगे, या मैं झूठ बोल दूं कि मैंने तो अल्केमिस्ट पढ़ी है और मैं ये बहुत बड़ा डैन ब्राउन का फैन हूं। तो मेरे को जो सच था वो मैंने बोल दिया, बट वो ऑनेस्टली बोला और कॉन्फिडेंटली बोला। अब उनके ऊपर है, उनको लगता है कि ये लड़का जो चेतन भगत पढ़ता है ये हमारे 200 के बैच में हो ही नहीं सकता,
मुझे तो सारे डैन ब्राउन और एल्केमिस्ट पढ़ने वाले और सारे जीनियस लोग चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता है कि उनके सारे 300 के 300 बच्चे जो हैं DU से 95% वाले ही हों या IIT नहीं हो। कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता है, तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है, टीचर्स को भी मजा नहीं आएगा। ये तो फिर वैसा ही हो गया ना कि सारे लोगों ने एक साथ एंट्रेंस एग्जाम दिया, आंख बंद करके काउंसलिंग हो गई, एक बैच बन गया। डिफरेंस in graduation process and MBA process, why you have GDPI and in-person assessment is this. वो चाहते हैं एक बढ़िया बैच बनाना। Think from the panel's perspective. वो जब देखते होंगे कि ये 2000 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट करते होंगे कि इन 2000 लोग को हम कैंपस बुला के इंटरव्यू वगैरह कराएंगे। मतलब अब वीडियो इज इट ऑलवेज ऑन Zoom now for this year? All of it is online या in person भी है? In person भी है। In person. ओके ग्रेट ऑसम, अच्छी बात है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वरना नहीं दिखेगा आपको कैसे आप क्या करते हो, आपका डेमिनर क्या है। डेमिनर समझते हैं आप? आपका डेमिनर क्या है, ये आपको जब तक कैंपस में नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा नहीं पता चलेगा आप कैसे बैठते उठते हो। ठीक है, सी मैं ये बात मानता हूँ कि स्पेशली गिवन दैट हम लोग अगर बहुत ही किसी हाई क्लास सोसाइटी से नहीं आते हैं तो बहुत लोग को डेमिनर डेवलप करने में टाइम लगता है। बट कभी भी इस चीज को अपना डिसएडवांटेज मत मानना। आपकी जो डाइवर्सिटी है, आपकी जो एडवांटेज है ना, वो हमेशा इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने DU में पढ़ाई की है या आपने बॉम्बे में पढ़ाई की है या आपने बैंगलोर में पढ़ाई की है। और हर बैच में आप जहां भी जाओगे इन तीनों जगह के ही लोग ज्यादा मिलेंगे, आप ही आउटलायर रहोगे। गोरखपुर के बच्चे कम मिलेंगे, लखनऊ के बच्चे कम मिलेंगे, बाराबंकी का एक मिल जाएगा, बॉम्बे बैंगलोर दिल्ली के ही ज्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। अभी आप जहां थे वहां पे आप शायद टॉप पे रहे या अच्छा किया आपने, पर आगे आप जाओगे तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी है और इसलिए वहां पे कोई कंपटीशन नहीं करना है। तो विनय, आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू एन ओवरव्यू व्हाई यू शुड चेंज द वे यू आंसर। Yes. कूल। एनी अदर क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? ओपन एंडेड है अभी तक, मुझे पता है। आई विल गेट इनटू स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर। ठीक है, कूल। ऑलराइट, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया YMBA पे, थोड़ा सा बात किया। आई होप थोड़ा सा जो मैंने डिस्कस किया है उससे पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो रही है, अपने अपने YMBA आंसर्स को और सॉलिड कैसे बनाना है। आई अंडरस्टैंड, ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये आंसर उनके लिए नहीं अपने लिए प्रिपेयर करो। खुद से पूछा करो सुबह उठ के YMBA, समथिंग दैट वेक्स यू अप। अगले 2 3 4 हफ्ते जितना भी टाइम आपके पास है, अगर आपकी सुबह नींद खुलती है और आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे को MBA की तैयारी करनी है, मेरे को MBA क्रैक करना है, तो आप TVF एस्पिरेंट देखे ही हो तो आप समझ जाओ क्या होता है। ठीक है, इट शुड बी समथिंग दैट इज नॉट ऑफ योर माइंड, इट कांट बी। और मैं फिर से बोलूंगा 35 लाख रुपीस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 5 लाख की नौकरी किसी की भी लग जाएगी आज की डेट में, लग जाएगी 5 लाख की नौकरी। इतना कॉन्फिडेंस तो है ना सबको? मतलब मिनिमम बता रहा हूँ ना, 5,40,000 पर मंथ की नौकरी सबकी लग जाएगी। कोई नहीं है ऐसा आप में से जिसकी नहीं लगेगी। 35 लाख रुपीस लगाने अगर जा रहे हो और 2 साल अपने प्रीमियम टाइम का लाइफ के, अपने परिवार से दूर, और बहुत सारी अलग चैलेंजेस, सबके अपने अपने चैलेंजेस होंगे मुझे पता है। तो अगर ये आपको चैन दे रहा है ना, चैन नहीं होना चाहिए आपको। मैं कुछ दिन के लिए बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है? चैन का टाइम आएगा, बहुत सोओगे MBA में, टेंशन मत लो, हो जाएगा। लेकिन तब सोओगे, बीटेक में भी सोते हैं, कॉलेज में भी सोते हैं, ग्रेजुएशन में सेमेस्टर होने के बाद 2 महीने तक कहाँ पता रहता है कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। बट अभी से आपके सिलेक्शन तक चैन नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के खुद से ये सवाल रोज पूछो YMBA और उसको इंप्रूव करो। 20 आइट्रेशन करोगे तो तुम्हारा खुद का सवाल इतना कॉन्फिडेंट होगा ना कि जब तुम वो बोलोगे कि क्यों MBA करना चाहते हो, क्यों 35 लाख रुपए लगाना चाहते हो, क्यों 2 साल जीवन का देना चाहते हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी होगा, उसमें पॉजिटिविटी भी होगी। और उसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार, बट एटलीस्ट क्लैरिटी तो होगी, श्योरिटी तो होगी। ठीक है, अब इस पे फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कोई फॉलोअप क्वेश्चन है, कोई चैलेंज है, कोई ब्लॉकर है तो बताओ। सर फ्रेशर्स के मैं लिए इसको ब्लॉक क्वेश्चन करूँ? पूछते हैं कि पहले जॉब क्यों नहीं करते, तो पहले एक्सपोजर ले लो, उसके बाद में यू कैन गो फॉर एन MBA। उसको भाई कैसे मैं तो, डिफाइन? देखो इसका रियल आंसर तो ये है जो आप नहीं बोल सकते इंटरव्यू में, कि फिर आप फ्रेशर्स को 40% फ्रेशर्स को आप लेते ही क्यों है बैच में, अगर ऐसा है तो।
है ना? मतलब अब पहले इस पर्सपेक्टिव से भी सोचो, पैनल के पर्सपेक्टिव से और कॉलेज के, वो हर बैच में 40% फ्रेशर्स होते हैं, 60% ही वर्क एक्स होता है ना, यही रेशियो है ना, 1/3 होगा, मतलब 33, 35, 40 फ्रेशर लेते हैं ना, Yes, तो sir. क्यों लेते? पर्सपेक्टिव के लिए लेते होंगे शायद। वो तो कुछ लाता होगा ना टू द टेबल, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता होगा, उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, वो तो एकदम सोच रहा है, एक ऐसा जमीन है, प्लॉट है जिसपे कभी कुछ बना ही नहीं है, तोड़ना ही नहीं है कुछ। जो एक्सपीरियंस लेके आता है वो थोड़ा सा ऐसा ट्रेन होके एक पर्सपेक्टिव लेके आता है कि ऐसे ही होना चाहिए। मेरे मैनेजर ने ऐसा बताया, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई, मैं टीसीएस में गया, मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में बताया गया ऐसा करना होता है, यही तरीका है, ऐसे ही एक्सेल चलता है, ऐसे ही वीलुकअप लगता है, ऐसे ही स्लाइड्स बनती हैं, यही तरीका है कम्युनिकेट करने का, यही तरीका है सबऑर्डिनेट करने का, यही तरीका है एग्जीक्यूट करने का। फ्रेशर का पर्सपेक्टिव अलग है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है, तुम एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ला रहे हो टेबल पे, ये है तुम्हारी स्ट्रेंथ। अब इस आंसर को तुम और बेटर अपने लाइफ से कैसे रिलेट करके बनाते हो वो तुम्हारे ऊपर है। कभी भी इसको एज डिसएडवांटेज मत देखना। 40% लोग फ्रेशर हैं यार बैच में। और बता देता हूँ, हर बंदा इस कंट्री में इस प्रिविलेज का हकदार है ही नहीं कि उसकी जॉब लग जाए ग्रेजुएशन करके, लग ही नहीं सकती, तो क्या वो एमबीए नहीं करेगा? इसको भी अपना हथियार बनाओ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी जॉब नहीं लग पाई और जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सोचो इस बारे में, हाउ विल यू फ्रेम दिस इनटू एन आंसर? ठीक है, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, दिस इज रियलिटी ऑफ इंडिया। उनको भी पता है, तभी तो ले रहे हैं 40% फ्रेशर्स को, वरना तो कर दो ना मैंडेटरी। आईएसबी भी लेता है, जिसकी फीस कितनी 45 लाख है अभी, 40 प्लस ही है आईएसबी हैदराबाद की फीस, 1 साल के एमबीए की, वो भी फ्रेशर ले रहा है कि मैंडेटरी है वहां पे वर्क एक्स? आई डोंट थिंक मैंडेटरी है। No, sir, it's fresher layers. ले रहे हैं ना 40 लाख रुपए, मतलब डीयू से निकलो, एसआरसीसी से, और आईएसबी ज्वाइन कर लो 1 साल के लिए। 720 का बैच है आईएसबी का, 650 लोग उसमें से 90% होंगे वर्क एक्स और 10% होगा मेरे ख्याल से फ्रेशर, पर वो भी ले रहे हैं क्योंकि पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसको कभी भी डिसएडवांटेज नहीं समझना, बट हाँ, अपना आंसर, अपनी जर्नी, आप कैसे खुद को डिफरेंशिएट करते हो, देखो वो सब आपके हाथ में। मैं अगर पर्सनल कोचिंग दे रहा होता तो फिर आपसे पूरा आपका हिस्ट्री पूछता और फिर बताता। उतना लाइफ में ऑनेस्टली मेरे पास टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब तो यहाँ पे झाड़ू पोछा भी खुद ही करना पड़ता है ना तो और कम टाइम हो गया है। Cool. We are locking in YMBA. I hope I've given you a baseline कि कैसे क्या करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं एमबीए में होता क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इससे भी आपको यही क्लैरिटी मिलेगी कि एमबीए करना है कि नहीं करना और क्यों करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एमबीए में मोस्टली सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं सारे। ठीक है, सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ कॉलेजेस में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में सब सेम होता है, थर्ड टर्म से ही स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं। टोटल 6 ट्राइमेस्टर क्या बोलते हैं उसे, 6 टर्म्स होते हैं, राइट, 3 और 3। ओके, आईबीएस में सेमेस्टर होता है, शायद 4 होते हैं, बाकी जहां तक मुझे पता है बाकी कॉलेजेस में 6 होते हैं। ओके, फर्स्ट 3 में कॉमन होता है। आप जून जुलाई में कॉलेज ज्वाइन करते हो, अगस्त में सी बन जाता है, सितंबर में समर हो जाता है और सितंबर में ही आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो ये जो पार्ट है आपका, क्या शंख नींद लग गई क्या, या सुन रहा है, या फ्रोजन है? नहीं सुन रहा हूँ सर। अच्छा, फ्रोजन हो गई स्क्रीन, लगा मुझे कि यू नैपिंग। ओह नहीं, आई थिंक नेटवर्क इज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मतलब एकदम परफेक्ट है वो। हाँ, तो जुलाई में आप ज्वाइन करोगे, अगस्त में सीवी बनवा लेंगे। फ्रेशर्स का सीवी 3 लाइन का, मेरे जैसे लोगों का 3 लाइन का सीवी। क्या लिखोगे उसमें? कॉलेज में ये मेडल जीत गए थे, क्विजिंग किया था, एस्से कंपटीशन, जो वर्किस वाले लिखे पड़े, ये अवार्ड मिला मुझे, मैं ये कोडिंग कर दी, ये मैंने बना दिया, तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अब फिर वही कहानी, जो अभी 2 महीने पहले अप्रैल में एमबीए क्लियर करके आए हैं, अगस्त अभी हुआ, जुम्मा जुम्मा हुआ कॉलेज आए, अब सीवी बन रही है, सितंबर में कंपनियां आने वाली हैं समर प्लेसमेंट के लिए, और फ्रेशर्स को होश ही नहीं है कि क्या होगा। सेम स्टोरी, जब कॉलेज कंपनीज आती हैं उनको भी, वो भी फ्रेशर ले रही हैं, ऐसा तो नहीं है। जब 100% प्लेसमेंट हो रहा है किसी बैच का और उसमें 40% फ्रेशर है, तो कैसे हो रहा है ना फ्रेशर्स का प्लेसमेंट, तो उनके छोटे सीवी भी हो रहे हैं। तो इसको भी कभी भी ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है उस टाइम पे।
फिर आपका दिसंबर में सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया, मार्च में आपका थर्ड टर्म कंप्लीट हुआ, आप सेटल इन हो गए एमबीए में, आपको समझ में आ गया ओके एमबीए ऐसे होता है, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, इतने सारे क्रेडिट्स मिला के वगैरह वगैरह सब समझ में आ गया। अब आप चले गए समर्स करने, समर्स करके आप लौटे, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चीज भूल गया मैं, दिसंबर में फाइनल प्लेसमेंट होता है सीनियर्स का, तो आप उसमें हेल्प करते हो उनकी, वो भी माहौल टेंस रहता है कैंपस में। फिर सितंबर में समर प्लेसमेंट होता है, दिसंबर में सीनियर्स का फाइनल प्लेसमेंट होता है सेकंड। सितंबर में वो आपकी हेल्प करते हैं, दिसंबर में आप उनकी हेल्प करते हो उनकी प्लेसमेंट कराने के लिए सीनियर्स की, और दिसंबर भी इसीलिए टेंस रहता है। फिर मार्च में आप चले जाते हो इंटर्नशिप करने के लिए, और 2 महीने इंटर्नशिप करके आप अपना फिर से वापस जून जुलाई में आते हो, फ्रेशर्स तब तक आ चुके होते हैं, तब तक आप एक्सपर्ट बन चुके हो। अब शुरू हो जाती है पीपीओ की कहानी। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। आप जहां इंटर्नशिप करते हो वहां बहुत लोग को ऑफर आ जाता है, पीपीआई या पीपीओ, प्री प्लेसमेंट इंटेंट या प्री प्लेसमेंट ऑफर। और उसके बाद फिर वही कहानी, सितंबर में जो कंपनी आएंगी उनको हमारा कैंपस अच्छा लगेगा तो दिसंबर में फिर से आएंगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है। ऑनेस्टली इससे ज्यादा अभी मत जानो एमबीए में क्या होता है, ठीक है। इसको मिस्ट्री की तरह से ट्रीट करो, हो गया तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही है, इसलिए इतने लोग कर रहे हैं और इतना पैसा ले रहे हैं, तो खराब तो नहीं होगी चीज। मतलब अब टेस्ला इतना पैसा लेता है, 50 लाख की गाड़ी बेचता है तो अच्छी निकलती है, वैसा ही समझ लो इसको, अच्छा ही निकलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी मच अबाउट कि होता क्या है एमबीए में, इट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसको भी खत्म कर दें कि कोई क्वेश्चन और पूछना है वाई एमबीए, सॉरी एमबीए में क्या होता है के बारे में? चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे प्रोसेस पे। प्रोसेस अभी जीई कहाँ कहाँ हो रहा है, ग्रुप एक्सरसाइज किसका किसका है, किसी का है? ग्रुप एक्सरसाइज कहाँ पे है पूजन? सर आईबीएस हैदराबाद में है, तापनी में भी है, एंड भुवनेश्वर में Okay. वैट एंड जीडी बोथ इज देयर सर। भुवनेश्वर में रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट यस, एंड वैट जीडी, एंड जीडी और जीडी फिर एंड देन पीएस। एपीआई। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो मैं सोच रहा था एक क्विक जीडी करा लें 10 मिनट का, सब लोग माइक ऑन रखेंगे और कैमरा भी ऑन रखेंगे, और लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि रियल में हो रहा हो जीडी। मैं पहले ही ग्राउंड रूल्स ले कर देता हूँ। सब लोग का स्पीकर वॉल्यूम थोड़ा लो रखें ताकि एको ना हो, ठीक है। अगर आप माइक ऑन रख रहे हैं अपना, वरना म्यूट ही रखें। कैमरा ऑन रखें हो सके तो। 10 मिनट का करेंगे हम लोग, ठीक है। और इनफैक्ट 10 भी ज्यादा है, कितने लोग हैं हम लोग? 10 है ना? हाँ 10 सही है, 10 मिनट सही है, ठीक है। एटलीस्ट एक बार सबको बोलना है, किसी ऑर्डर में नहीं बोलना है, ओके। एक बार एटलीस्ट सबको बोलना है। देयर विल बी मार्क्स फॉर group marks for introduction, there will be group marks for conclusion, and there will be marks for your speaking, okay। कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है स्टार्ट करने का एंड करने का, बट एज अ ग्रुप आप कैसा बिहेव करते हैं इस बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, जीटी के बारे में बहुत बार ऐसा होगा कि ग्रुप को असेस किया जाता है, और ग्रुप डिस्कशन कराने का पर्सपेक्टिव ये होता है, कई बार पूरा पूरा ग्रुप भी रिजेक्ट हो जाता है, सुना होगा ये तो। Yes. किस्मत खराब हुई तो ऐसा हो सकता है। अब वहां पे जब ग्रुप खराब निकलता है ना, तो आपको लीडर बनना पड़ता है, और जब ग्रुप अच्छा है तो आपको टीममेट अच्छा बनना पड़ता है। डिफरेंस समझ रहे हैं? और आप आज ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ना आज ना अपने फाइनल जीडीपीआई में, कि आपको ग्रुप कैसा मिलेगा। ग्रुप खराब मिलेगा तो आपको लीडरशिप दिखानी है, ग्रुप अच्छा मिलेगा तो आपको टीममेट अच्छा बनना है, टीम वर्क दिखाना है। मेक सेंस? समझ गए क्यों ऐसा करना है? बता, समझ गए? Yes, sir. खराब ग्रुप में आपको किसी तरह से ग्रुप को सही करना है। अगर फर्स्ट हाफ बहुत खराब जा रहा है जीडी का, कि मछली बाजार है, हाउ बाय मेंटेनिंग डेमिनर आप थोड़ा सा ट्रैक ला सकते हो। कंटेंट भी लाओगे, ट्रैक भी लाओगे, ठीक है। मॉनिटर बनना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, अच्छे अच्छे बीइंग अ गुड पर्सन आपको मॉनिटर बनना पड़ेगा, और थोड़ा सा लोगों को डिविएट होने से रोकना पड़ेगा। बट सब अच्छा बोल रहे हैं तो ज्यादा ये सब नहीं करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है सबको, ठीक है। तब आप भी कंट्रीब्यूट करिए, जितना कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है अगर सही जा रहा है जीडी। तब जबरदस्ती में जो है बाल की खाल निकालना, किसी की गलती पकड़ लेना कि तुमने 4 को 6 क्यों बोल दिया, तुमने 10 मिलियन बोला था, 5 मिलियन होता है, सचिन ने तो
ODI में 51 मारे हैं, टेस्ट में 49 मारे हैं, उल्टा होता है, ऐसा नहीं बोलना, पकड़ना नहीं बात, ठीक है, उसमें फिर कंस्ट्रक्ट करना। बट अगर खराब जा रहा है, ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और जिन लोग के अंदर ये स्किल नहीं है और वो खराब ग्रुप में चले गए, तो फिर आप काफी हाई चांस है आप भी उसमें पिस जाओगे। इस पे प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। GD की प्रैक्टिस हो रही है इस क्लास में, मतलब दिव्य सर के साथ, या कैसे कर रहे हो आप लोग? Yes, sir, there were 1 or 2 classes. Yes, sir. ठीक है, ओके। मतलब जहां तक हो सके आई वुड से GD की काफी प्रैक्टिस करो, हर हफ्ते एटलीस्ट एक GD करो, ठीक है। या तो अपना ही ग्रुप बना लो दोस्तों का, करते रहो, लेकिन एक मॉनिटर रहता है या एक वो मतलब फैकल्टी रहती है तो थोड़ा बेटर हो जाता है मछली बाजार बनने से। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। चलो आइडियाज दो टॉपिक के। Drone technologies. ठीक है, Trade और war. Trade Sir, war US chat Trade war, China. okay, GPT, और AI. AI, वेरी Chat नाइस। GPT, और AI. Yeah. हाँ सुन लिया, Sir, गुड। layoff. और Adani Layoffs stock prices. वाह Current. भाई अर्पित, तुम तो यार एकदम अंकुर वारिक को ही है ये तो। ओके, अंकांशा आप क्या बोल रहे थे? Layoffs happening all Layoffs, around. very nice. Yeah. Cool. Okay. Anything else? कोई और आइडिया? मैं सोच रहा हूँ इनमें से ही कोई लूंगा। जोशीमठ क्राइसिस, ओके। Sir, Pakistan crisis and Sri Lanka crisis. ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों जा रहे हो? ओके ठीक है, इजी रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग MBA करने जा रहे थे तो होता था इज टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। ये उस समय 2012 में तो फिर 3G भी नहीं आया था ना सही से। YouTube चल जाता था तो खुश हो जाते थे उतने में, मतलब स्ट्रीम हो जाता था तो खुश हो जाते थे 2011 में। बीटेक 2007 से 11 किया मैंने। तो पूछते थे इस टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, अब हो गया है इज AI अ बून और अ बेन। तो यही करते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। इज AI अ बून और अ बेन, यही टॉपिक है आज का, ठीक है। I'll give you guys 1 minute to think, then I'll signal. Anybody can start. Okay, let's begin. Hi everyone, my name is Parijat. So, considering this topic, I believe artificial intelligence is a bane because mostly we are seeing now in the tech and the banking jobs that many of the in-person jobs are being replaced, by the use of artificial intelligence. And however, I believe it has made our work easy and simple. But like regarding the hiring of the candidates or regarding the human related work, it has almost replaced uh, by the artificial intelligence. I would like to I agree with. will. I'm afraid that I will disagree with Parijat, as the jobs that are lost is mostly because of the inflation in India as well as around the world. I would also say that it is a boom. AI is a boom, as ChatGPT, Jasper, Quillbot. We can see that how helpful these apps are.
And in conclusion, I would say that these sites has to be regulated by the parents, as children should not be too inclined to use this in their project. But it is a boom for me, I would say. Hello everyone. Sir, I'd like to My name is counter. Vinay Dayama. According to me, whenever scientists invent new technology, it has the advantage and disadvantages both. So, like when we invented nuclear uranium atoms, so some use them to create energy, transform energy, but many people use it as to make an atom bomb. Similarly, AI is boom because it helping to create many lengthy process to do it in a shorter way or a short time of period. But at the same time, AI will destroy many jobs because when there are 10 people doing the same task, AI will do by in within some minutes, or I can say like in few days. So somehow it is destroying jobs. And secondly, when these kind of technology invented, this will spread various disadvantages, or I can say harm things. I'd like to expand Vinay's point by adding like an example that I read about. So in a case where doctors were using a software to do some of the let's say examining of the patient, some of the cases, exceptional cases of some case were left out because the AI wasn't able to like grasp the condition of the patient correctly. So because of that, they reduced their dependency on the program, but they didn't completely finish it because it was definitely helping them, but to just a certain extent. So I think that is what Vinay is trying to say, that to a certain extent, definitely it would help us, but we are not at a stage to completely being able to depend on it. So I think the jobs would still be there. Yes, there would be a decline in it, but there would still be jobs that would be required. Well, So in like to my add opinion, to- I think well, in my I'd opinion, like- I think it's we cannot just completely say that it is harmful or it is not, because if I give examples, in recent time it is helping children also and people also to expand their ideas. But if I go by an example, last year a report came that 19 or 18 scientists died because of the they actually prepared some robots and they attacked it, and later they actually have to decide for it, and they did a lot of stuff with that, and then those robots were controlled. So in my opinion, in some case it is doing really good. We can have good ideas. We are OpenAI is it is expanding its opinion about it and saying that it will improve it, but in some cases it is also showing disasters. So I think we cannot completely come to a point right now. Exactly. I'd like to share something This technology has some advantages, but at the same time, this also has some disadvantages. Now, I think, Yes, in my opinion, that we cannot blame the technology itself. It's more dependent on the user it is put into. So if we would be putting it into a good use, it would act as a boon. And if we would be putting it in uses like stealing data or creating problems for others, then it would act as a bane. So there is no basis on which we can define that it is only a boon or only a bane. It but can I act as think both. people are confusing AI as something which is predefined, and yes, it has its algorithm, it has its basis. But I think those of you who are who has done more research about this would know that AI learns on itself. It is something that once a human inputs the basic algorithm, then it starts to learn itself. It adapts itself to the user according to the user, and even better, it captures and adapts easily better than humans also. Yesterday I was reading the Hindu newspaper, and there was one section regarding it. If we continue using AI, it will learn itself, and it is better at adapting to things and learning and grabbing things quickly, better than Yeah, humans. So yeah. I think in future, if we talk about 100 years in the future or 70 years in the future, I think it will prove a very great disaster, or a very it will have a very adverse effect on humans. As Yeah, of I now, for remember 20-30 an years, it will incident. be very good. It is a bane. It will sorry, it is a boon. But in later, it's a boon. I mean, it's a bane. Sorry.
Considering I also read India's about one position incident. as one of the, go ahead, please. Okay, In my so yeah, I opinion, also read about that in one of the incident in OpenAI. They actually had two AI products, and they firstly they were communicating on the basis of what the intelligence was given to them. But after some time, they started to communicate within them. They were coding like A B, something like that, and the humans were not able to get that what the both AI were concluding. So I think it could be like a disaster in near future, like 70 to 80 years. I would like I'll to agree add with on to Ruchita. Parijat's point regarding unemployment in due to AI. Considering India's population is about 1.4 billion, and most, if not all, is uneducated or not educated enough to know about coding and AI. AI would, of course, displace the jobs, the entry-level jobs and the manufacturing jobs, which are generally staffed by the uneducated or the under or 12th pass people. Hence, I think AI would turn India from a mass labor country to a mass technology country where only a few select highly educated individuals will be able to find work, as most, if not all, the entry level and manufacturing jobs, which are labor intensive and labor absorbing jobs, would be replaced by AI. I So agree according to with me, Rudra AI is here. a ban Like, I because agree with Rudra here. India is forecasted to be the manufacturing hub in the future. It can have an adverse effect that AI takes up the job in manufacturing. So I agree. and sir, apart from the loss of jobs or employment we have seen because of AI, people are also becoming too much dependent on it, and it has also affected the creativity or the it has also affected us in a negative way. We are too much dependent on AI for our day-to-day activities. Like if you, in the case of just like if we have to write a blog, the people can do that efficiently with the help of AI instead of using their own brain. So I think people are becoming creative and too much dependent on AI, and it's going to affect us in a negative way in the upcoming future. I agree with Harshit and would like to point out that recently a university in Paris banned the use of AI, ChatGPT, in order to write assessments and assignments because there's been a huge increase of students using ChatGPT to write their essays and assignments in which they don't actually pursue the case studies or learn anything, which will also affect education in the future as it will bring the learning and the reading rates down because people will be hooked onto ChatGPT to complete their homeworks, assignments, etc. I Okay, think Nanish, you were saying restrictions something. are needed to be. Yes, sir. I'll agree with Rudra. Because of the population increasing in India, I think artificial intelligence will be a problem at after few ages because we are very dependent on it. I'll give my example only. I have to write an assignment or type. I'll use artificial intelligence only to means like to make it easier. So I think after a few years, it will destroy people's job or manufacturing job basically. So that's it. Cool. Any conclusion? Last minute. Yes, I want to point out that in order to conclude this process, I want to say that it's not about we should use AI or not. It's humans are only making the AI technology, we are making it use. So I think we should be the one who should put some restrictions in there. We could decide for areas where we should use AI and we should not, we are the one who have to handle the intelligence in them. So I think some laws and some restriction, government will also come with some laws, I think, in near future because of all the things happening around the world. And today itself, Karnataka, I think one school Karnataka law school said that its students are using the chat GPT, so they have banned it. So I think government would come with something. And yeah, I think that's all. All right. Thank you, guys. That was a good JD call. Okay. Feedback time. हो गया, मैंने सबका सुन लिया है. Everybody spoke, right? Anybody who could not speak? सबने बोल दिया ना? Perfect. Awesome. Which is a good thing. Everybody got a chance to speak, or at least they spoke eventually.
ठीक है, अभी बाकी लोग म्यूट कर लो. Whenever you have to speak, you can speak. First thing is that the group discussion is for the group. It's not for sir or the panel. Do not address. Do not even look at them. Do not even try to assess their reaction. Do not look towards the panel. You will look towards people who are speaking in the group. The panel is non-existent. It's almost like वो कैमरे से देख रहे हैं, ऐसा समझो. वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तुम्हारी. वो नहीं है वहां पे. उनकी तरफ नहीं देखना है. कुछ भी हो जाए, भूल जाओगे वो है वहां, कितना भी खराब जा रहे हो. ठीक है, अवॉइड 95% टाइम्स अवॉइड करो. बहुत कुछ ऐसा हो गया एकदम मारा पीटी हो गई तो फिर बात अलग है. बट यू गाइज वर रियली गुड बिकॉज यू गाइज वर इन अ वेरी well behaved group which was really like मतलब ये अच्छा ग्रुप था overall. This was all fine according to me. एक तो फीडबैक ये हो गया कि do not address or do not even look towards the panel. वो नहीं है वहां पे. Second thing is building upon each of those points. ठीक है, you guys did a good job there, but do not cite examples which you are not fully sure of. Like I think Ankita, you gave one of the examples. I'm not sure if you're fully sure of that example. And then again, second time also, I think you gave another example. So rather than taking chance to cite an example, only cite when you're 100% sure, or else do not cite it. It's okay. Okay. The second thing is that which one? The robot killing the scientist? No, sir. Yeah, sir. It was on a site. It was written. I don't remember exactly, but it was given somewhere on the website. So in such situations, okay, I'll tell you what to do. Do not cite examples which other people will not be aware of. Cite the obvious examples. I'll tell you why. If I as a panel did not know about this news, this is fake news for me. I'm not saying that this is fake news. If it is not as obvious that half the people in the room know about it, आपको याद आ गया, आपने बोल दिया, is not enough. मतलब डोंट टेक दिस एज अ नेगेटिव फीडबैक. समझ रहे हो ना मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आप वो अब आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल कि चाइना में पता है वहां पे क्या हुआ, 2 क्लब में 50 लोग आ गए थे. अब न्यूज में नहीं आया, सबको नहीं पता है तो नहीं. दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड. आपने कहीं भी पढ़ा हो. आपको वो एग्जांपल्स देने हैं जो एकदम ही कॉमनली अवेलेबल है. ठीक है, या जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो रिलेटेबल है. ठीक है, अब जैसे फ्रांस वाला एग्जांपल किसने दिया? रुद्रा. ओके, आई कैन अग्री टू दिस वन. मतलब ये ऐसा है कि मतलब ये झूठ नहीं होगा, या मतलब ज्यादातर लोगों को पता हो. झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ कि डोंट टेक इट कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गलत बता रहे हो. ठीक है, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेड अप नहीं लगना चाहिए. इट शुड नॉट साउंड मेड अप. ओके ओके सर. एंड नैनिश ने तो बोला कि मैं चैट जीपीटी खुद यूज करता हूँ. ठीक है, डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ. ठीक है, कि मतलब मैं ही करता हूँ तो अच्छा है कि बुरा है, खुद को मत फंसाओ. ठीक है, यू when you are in that group, you even if it is about BJP versus Congress ना, आप BJP कांग्रेस के नहीं हो, याद रखो. आप ये डिस्कशन कर रहे हो as a business. Why do MBA colleges do GD? What do they check? They check कि अगर आपको एक ग्रुप में छोड़ दिया जाए और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आप उस पर कितना एग्नोस्टिकली सोच सकते हो. एग्नोस्टिक मतलब विदाउट टेकिंग साइड्स या विदाउट अटैचिंग दैट आइडिया टू योर ओन पर्सोना. अपने पर्सोना को आइडिया से डिसोसिएट करना है. सही है? दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर. अगेन सेम वैसे ही हो गया पिछले वाले आंसर की तरह, पिछले वाले डिस्कशन की तरह, कि अपने को डिसोसिएट करो इस स्टेटमेंट से और तब सोचो. थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कि अगर मान लो ये डिस्कशन अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के चेंबर में कर रहा हूं और वो बोल रहे हैं कि यार एआई का यूज करना है, पर करना चाहिए कि नहीं. हमारे सारे मैनेजर्स को बुलाया हमने, 10 के 10 मैनेजर्स आ गए, पूजन, रुद्रा, नैनिश सब आ गए और हमने डिस्कशन स्टार्ट किया हिंदुस्तान यूनिलीवर के ग्रुप में. वो ये सवाल पूछ रहे हैं तो अब उनका नहीं है ना एआई, उनका खुद का है क्या चैट जीपीटी, या उनका खुद का कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं, वो तो बिजनेस पर्पस सॉल्व करने के लिए पूछ रहे होंगे. ऐसे सोचना है. समझ में आई बात? खुद को डिसोसिएट करके. ठीक है, मैंने घर पे किया, मेरे बेटे ने यूज किया, बहुत मजा आया. मेरे पड़ोसी ने यूज किया, बिल्कुल मजा नहीं आया. ठीक है, तो वहां पे आप क्या साइट करोगे? अगर आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम देगा तो आप बिजनेस की तरफ से सॉल्यूशन दोगे उसका, और वही एग्जांपल्स दोगे जो सबको समझ में आएंगे या सबने सुने होंगे. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ
कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है तो इसलिए अच्छा है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज यूज कर रही हैं। अब जैसे इस केस में आप ये बोल सकते हो कि हाँ बाकी कंट्रीज का क्या सिचुएशन है, क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे तो बहुत सालों से यूज कर रहा है या कुछ ऐसा, मतलब या स्विट्जरलैंड का देखो कितना डेवलपमेंट है, जापान कर रहा है, हम लोग तो अगर बिग इकोनॉमी बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो आप बिजनेस साइटेशन दे रहे हो जो दुनिया को सबको पता है, और वो सामने वाले को बोलने पे मजबूर करते हाँ यार बात तो सही कह रहा है। दो बोथ साइड्स, मतलब आप बोन बोलो या बेन बोलो, बट सामने वाले को ये बोलने में मजबूर कर दे कि बात तो सही बोल रहा है यार, अब क्या बोलूंगा मैं तो कट गया। बात तो सही बोल रहा है निकलना चाहिए पैनल के दिमाग से, वही बात बोलनी है, ठीक है। तो वो जो 3 पॉइंट आप लिखते हो ना फर्स्ट 1 मिनट में, वो ऐसे 3 पॉइंट होंगे जो सुन के सामने वाला बोलेगा बात तो सही बोल रहा है, चाहे फॉर बोलो या अगेंस्ट बोलो। अगर ये नहीं निकल रहा है ना उसके मुंह से तो आपका पॉइंट बेकार है, क्या फायदा बोलने का। अगर मेरे को बात सही नहीं लग रही है आपकी, आप फेवर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन हाउ दिस वेंट, एनी अदर आइडियाज, अदर थॉट्स? सर अगर मतलब हम लोग अगर मतलब ऑनलाइन देंगे जीडी, तो सर जैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, जैसे हम आंसर देने वाले हैं कोई और बोल रहा है, तो इस पे कैसे टैकल करें? क्या कुछ कॉलेजेस का प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन है क्या? हाँ सर मेरा तो ऑनलाइन। कौन सा? SIBM बैंगलोर। ओके ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ऑनलाइन एज कम्पेयर टू इन पर्सन फॉर श्योर, ठीक है, बट हाँ इसमें एक और चीज मुझे उसमें बोलना था, मैं भूल गया कि कर्टेसी, अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो जिसमें सबकी सैलरी 50-50 लाख रुपए है, तो कोई किसी को मारा मारी करेगा नहीं। तो कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको खुद भी कर्टेसी दिखानी है और एक्सपेक्ट करना है कि सामने वाला भी आपको कर्टेसी दिखाएगा, ताकि कट थ्रोट ना लगे और ऐसा ना लगे कि यहाँ पर मछली बाजार हो रहा है। तो जब भी आप किसी की बात काटते हो तो सॉरी टू कट यू, लेट मी टेक अ मोमेंट, ऐसी चीजें आप बोल के ही वहां से पिकअप करोगे अगर आप बात काट रहे हो तो। सर पोलाइट हर्षित को ऐड कर लो कि दोबारा वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। उसका भी आया तो नहीं है मेरे पास रिक्वेस्ट। हाँ लाइक उसने बोला कि अभी आएगा तो कर लीजिएगा। ओके लेट मी सी, मैं होस्ट हूं भी कि नहीं मुझे श्योर नहीं है। चलेगा फिर, शायद मैम के पास आ रहा होगा। हाँ आई डोंट थिंक आई एम द होस्ट, मैम होस्ट है। ओके ओके तो मैं श्योर, ठीक है कोई बात नहीं, आई होप ही इज एबल टू जॉइन अगेन। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? कर्टेसी से। कैसे? कर्टेसी, हाँ कि किसी को कट करना है तो हो सके तो कर्टेसी यूज करके कट करो। सॉरी टू कट यू थ्रू, लेट मी टेक अ मोमेंट जस्ट टू ऐड ऑन, ऐसे बोलना है, ठीक है। और आई नहीं करना है, आई तो करना ही नहीं है। ये दिस इज नॉट अबाउट आई, दिस इज अ वी। जितना आई करोगे अटक के, ये नहीं बोलना है। ग्रेट, और बताता हूं, ग्रेट पॉइंट, हाउएवर, ग्रेट पॉइंट, बट, ग्रेट पॉइंट, दो, ऐसे बात करनी है, ठीक है। पोलाइटनेस की प्रैक्टिस करनी है सबको। ओके अच्छा करा है एज अ ग्रुप, आई वुड से दिस वाज अ रियली गुड ग्रुप, बट कैन बी बेटर। और टू बी ऑनेस्ट डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक के बारे में इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक क्या है, टॉपिक इज हवा, अभी है 1 मिनट बाद नहीं है। मतलब जब निकलोगे जीडी ग्रुप से, रूम से अपना प्रोसेस देके, तो लाइफ में कभी वो जीडी फिर से नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ता है। टॉपिक तो कुछ नहीं है ना, टॉपिक तो असेस भी नहीं हो रहा, बस कौन सा तुम्हारा कंटेंट का नोट्स बना के ले जाएंगे और बुक पब्लिश करेंगे उसके ऊपर। आई डोंट थिंक कि तुम चैट जीपीटी का फ्यूचर डिसाइड करोगे वहां बैठ के, या किसी भी टॉपिक का, कुछ नहीं होना है। टॉपिक तो 1 मिनट में उड़ जाएगा, खत्म। टॉपिक के अलावा सारी चीजें मैटर करेंगी, तो इसलिए उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट थॉट, वेल पुट, नाइसली सेड, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, बट ये जो स्टैमर होता है वो आई मत करना। ये आई जो है ना इतना चुभता है एज अ पैनल। तुम अपने ग्रुप में भी देखो, कोई भी बोले मैं कर, मैं क्या मैं लगा रखा है, डोंट डू दैट, ओके। तो ये बी एज पोलाइट एज पॉसिबल व्हेन कटिंग थ्रू। कट थ्रू करना हमेशा कठिन रहेगा, खुद कट थ्रू करना काफी कठिन हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए होते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, स्मार्टली। वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि जब दूसरा वाला बोलता है, पॉज लेता है, एक मोड़ लेता है अपनी बात में,
आप वहां पे कैसे स्मार्टली घुस सकते हो ग्रेट पॉइंट बोलते हुए। बहुत लोग क्या करते हैं कि लंबा सेंटेंस बोलते हैं और एक से ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, वहीं पर होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ध्यान से सुनोगे तो मिल जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो बोलेगा कि देयर वाज दिस कॉलेज एंड दिस वाज हैपनिंग एंड द कॉलेज डूइंग दिस, एंड जैसे ही एंड बोले उसका पॉइंट हो गया है ना, पॉइंट बोलने के पहले मत काट देना, दैट इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दैट इज नॉट अ टर्न इन दैट कॉन्वर्सेशन। बट जैसे ही वो दूसरा एग्जाम्पल देने वाला हो तब बोलोगे ग्रेट पॉइंट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, अब मेरी बारी। तो आप कोशिश करोगे काटने की उनको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो जीडी हो गया। देयर इज नो एंड टू हाउ मच प्रैक्टिस यू कैन डू। आई वुड से एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक करो, ठीक है। बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, जीडी जितना ज्यादा करोगे उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और जीडी लाइफ में खत्म नहीं होता है। जीडी कॉलेज में जाओगे तो फिर प्लेसमेंट में फिर से बैठना पड़ेगा, तो जीडी तो चलते रहते हैं, ठीक है। बट जीडी इसलिए कराता है कॉलेज कि वो देखता है कि आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, और एज अ ग्रुप आप लोग कोई सॉल्यूशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो ये भी कोशिश करो कि जो ग्रुप बोल रहा है ना उसमें एक कॉन्फ्लुएंस हो, एक संगम हो, एक कन्वर्जेंस हो। आप एकदम अलग बात मत करने लगो कि मतलब जिसके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं है। अब इस टॉपिक पे ऐसा नहीं हुआ, सिवाय अर्पित ने 2-3 और नए टूल्स का नाम लिया जो किसी ने नहीं सुने थे शायद। क्या क्या थे वो, अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी, क्वेल, कोड, क्या था वो? Jasper, Quill, and one more I forget. हाँ, तो वो मैंने नहीं सुने थे, एटलीस्ट आप लोग को पता होगा शायद, ठीक है। तो ऐसे मतलब आई एम नॉट सेइंग अगेन, दिस इज नॉट नेगेटिव फीडबैक, दिस इज जस्ट फीडबैक कि ऐसा बहुत कुछ वीराना बात मत करना जो किसी को पल लेना पड़े। आपको कन्वर्जिंग बातें करनी है, कन्वर्जेंस समझ रहे हो ना। इसीलिए कन्वर्जेंस ही होगा तो कंक्लूजन कैसे आएगा, और कंक्लूजन नहीं आएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले डिसाइड कैसे करेंगे उनको एआई यूज करना है कि नहीं करना है। फिर से मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर इस मीटिंग ग्रुप को हटा देंगे, दूसरे मीटिंग ग्रुप को बुला लेंगे, उनको सेम टॉपिक दे देंगे, उनसे ले लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो हो गया जीडी। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यू रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं क्या जो मैं कोशिश कर सकता हूँ आंसर करने की, जैसे वाईएमबीए के अलावा? सर मैंने ह्यूमैनिटीज वाला पूछा था। हाँ करेक्ट, ह्यूमैनिटीज वाला पूछा था। आप यू आर इन दैट डाइवर्सिटी बाय द वे, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राउड जो इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, आप उसमें नहीं हो। ह्यूमैनिटीज इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डूइंग एन एमबीए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा ऐसे सोचते हैं, सर थोड़ा पीछे जाते हैं, ओके। सबसे फेवरेट टॉफी कौन सी है आपकी? सर किसी की भी, टॉफी सबकी, कोई भी। मेलोडी। अच्छा चलो मेलोडी, ठीक है। और वो कौन सी एक आती है, वो ग्रीन वाली कैंडी जो होती है, अच्छा Pulse, आती sir. है पल्स, पल्स, अच्छा पल्स। पल्स आती, पल्स सबको खाई होगी ना, सबने पल्स तो खाई होगी, है ना। ठीक है। अब Yes. जैसे मान लो मार्केट में बड़ी सारी कैंडी आती है, हजारों आती है, मतलब एल्पेनलीबे, ये वो, मेलोडी वेलोडी, फिर बोलता है पल्स कि भाई मेरे को एक मार्केट में कैंडी लॉन्च करनी है, ठीक है। तो उस पर वो रिसर्च करेगा कि एक अगर मेरे को नई कैंडी लॉन्च करनी है तो किस टाइप की करूँ कि लोगों को पसंद आए। लोगों की पसंद समझने के लिए लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझने के लिए लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, बिफोर एनीथिंग एल्स, है ना। ह्यूमैनिटीज इसी का सब्जेक्ट है। नैनिश, इफ आई एम रॉन्ग टेल मी, ह्यूमैनिटीज इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस ना। यस सर। हाँ, मतलब when I say humanities, I mean all humanities. I mean not just arts, not just psychology, not just history. Okay, humanities with all of this. So human evolution हो गया, या psychology हो गई, या arts हो गई, उसमें जो humans की understanding है वो एक इंजीनियरिंग में कभी नहीं पढ़ाई जाती। इंजीनियरिंग में मशीन की साइकोलॉजी समझाई जाती है, बट आपको ह्यूमंस का इवोल्यूशन, आपको ह्यूमंस की थिंकिंग, ह्यूमंस के बारे में ज्यादा बताया जाता है। और इवेंचुअली जो भी सर्विस और प्रोडक्ट है दुनिया में वो तो ह्यूमंस ही यूज करेंगे ना, पैसा कौन देगा उसका? जो भी सर्विस बनाओगे, अर्बन कंपनी बना लो, जोमेटो बना लो, उबर बना लो, एप्पल बना लो, यूज ह्यूमंस करेंगे। ह्यूमंस की साइकोलॉजी को स्टडी करना, ह्यूमंस का मार्केट गैप बनाना, ये सबसे ज्यादा आपको आता है। You understand what I'm saying? Yes sir. So you got your answer. Are you able to frame your answer now in the back? Yes sir, I'll frame it definitely. तो मैं But if they पूछूं ask you, I hope
हाँ अगर वो पूछने की आपका सब्जेक्ट क्या था, तो जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था मेरा थर्ड ईयर में, तो उसमें तो ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ऐसा कुछ वो तो नहीं था उसमें। हाउ यार अब देखो दोनों मेरे हिसाब से तो दोनों में रिलेटेबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ह्यूमैनिटीज से ही रिलेटेड है दोनों ही, ठीक है। अब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा आई मीन से, अब डायरेक्टली तो नहीं, वो तो सोशियोलॉजी हो जाएगा, बट आपको बेटर आइडिया है मेरे ख्याल से। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक चीज होती है एमबीए में जिसको बोलते हैं, तो सर्वे किया जाता है हर चीज के लिए, पहले सर्वे होता है राइट, कि कितने लोग कहाँ रहते हैं। अब मान लो आपको कूलर बेचना है, ठीक है, तो आप सर्वे करोगे तो कूलर कहाँ बेचोगे, मतलब शिमला में तो नहीं बेचोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जांपल, बट कूलर आप बेचोगे जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं तो ये आंसर बोल देता, मैं तुम्हारी जगह होता है एमबीए में तो, कि मेरे को ज्योग्राफी पता है तो मेरे को पता है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बिकना चाहिए, ठीक है। पहाड़ों में मैगी ज्यादा बिकना चाहिए, ठीक है, और कूलर जो है प्लेन्स में ज्यादा बिकना चाहिए जहाँ समर ज्यादा पड़ते हैं। ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग मेरी बेटर है, क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग मेरी बेटर है, तो मेरे को तो पता है कि सीजनैलिटी कैसे काम करती है। एक वर्ड होता है हमारे पास सीजनैलिटी, कि सीजन्स के हिसाब से मार्केटिंग कैसे प्लान की जाती है, ठीक है। अब जैसे H&M की बात कर लेते हैं, H&M में जाओगे तो समर्स में सेम कपड़े और विंटर्स में सेम कपड़े तो नहीं होते हैं ना। हैदराबाद जाओगे तो वहां तो विंटर के कपड़े होते ही नहीं है। चेन्नई के H&M में होते होंगे विंटर के कपड़े, जैकेट्स नहीं होते हैं। कोई तो प्लान करता होगा ना इस चीज को, कि ये जो इन्वेंट्री है, लखनऊ वाले H&M में जैकेट 100 भिजवाना, चेन्नई 5 भिजवाना, कोई करता होगा ना ये प्लानिंग, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ये रॉकेट साइंस है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हम सब कर लेंगे, लेकिन तुम्हें शायद 5% बेटर पता होगा। नहीं पता है बेटर तो फिर बात अलग है। अब मेरे से बोलोगे ज्योग्राफी वाले हो, तो मैं तो मतलब मैं अब जैसे, हाँ ये है कि अगर आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड जो आपके सवाल हैं, फिर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ये भी सिर्फ इसलिए पूछा जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं जो आप करते हो उसमें। कई बार ऐसे पूछते हैं, अच्छा आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, अच्छा ठीक है बताइए फिर ये फलाना जैंड गेट क्या होता है, ऐसे कुछ भी बकवास। ऐसे उनको नहीं जानना है जैंड गेट क्या होता है, बस अब वो जानना चाहते हैं कि आप जो चीज पकड़ते हैं, आप जो चीज परस्यू करते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं। क्या करेंगे वो जान के कि आप पिछली बार क्या कर रहे थे, ज्योग्राफी से कोई लेना देना एमबीए का नहीं है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो परस्यू करते हो आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं आगे जाके। मेक सेंस, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को लेकर अपना डिसएडवांटेज मत मानो कि ह्यूमैनिटी से पढ़ा है या बायोलॉजी की है या डेंटिस्ट बन गए थे या सीए बन गए थे या लॉयर बन गए थे तो एमबीए नहीं कर सकते हैं। सब एमबीए कर रहे हैं, सब इनफैक्ट स्टैनफोर्ड जाके 1 करोड़ का एमबीए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे देके। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसके ज्यादा पैसा वो स्टैनफोर्ड चढ़ा जा रहा है, यूएस जाके 1 करोड़ का एमबीए कर रहा है। तो डोंट थिंक दैट दिस इज अ डिसएडवांटेज। हाउ यू बेंड योर आंसर, हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर आंसर to make sure that you are able to fit into what the market requires, and the market means the people require, okay. अब पॉलिटिकल साइंस तो इवन बेटर है यार। आज की कंट्री में सबसे बड़ा एडवर्टाइजर इंडिया में कौन है भाई? बीजेपी। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी ही सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है ना देश में। उससे ज्यादा एड तो कोई करता ही नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग है और तुमको मैं बोल दूं कि उस एजेंसी में तुम्हारी जॉब लग गई है जिसमें बीजेपी का काम होता है या कांग्रेस का काम होता है, तो तुम तो विनर हो। ठीक है, तो बनाना पड़ेगा आपको आंसर। डोंट थिंक इट्स अ डिसएडवांटेज। कूल, नेक्स्ट जल्दी कर लेते हैं। चलो, आई विल गिव मोर 10 more minutes. So there's a question why we should take you. What make you stand different out from others? So we have always generic answers that I have communication skill, and like in my case, I have done BCom, so I have a basic knowledge of management studies. So what else we can add in that? आपकी जर्नी आपका आंसर है, आपका डिग्री एकदम भी आपका आंसर नहीं है। आप ये सोचो कि आप यहां तक भी अगर आए हो जिन भी ऑड्स को बीट करके, अगर आपकी फैमिली में आप सबसे अच्छा कर रहे हो, आपने एमबीए के कॉल्स निकाले हैं आपके, मुझे ये पता है, मैं इस ग्रुप के लिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ बिकॉज आई कैन
फील दैट एनर्जी, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी स्मॉल टाउन से था, बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे जैसे करके यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे मेरी जर्नी वही थी कि मैं चेतन भगत की 5 बुक पढ़ के पहुंच गया। आपकी क्या जर्नी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट बीकॉम। फॉर एग्जाम्पल, लॉरियल आई थी कैंपस में, मुझे याद है, और उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, एंड मैंने अच्छा आंसर दिया था, मेरा हुआ नहीं, ठीक है, फिर भी मैं वो आंसर बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो अच्छा आंसर था। मैंने बोला कि मेरे को स्मॉल टाउन और मीडियम टाउन तीनों की बहुत समझ। मैं गोरखपुर में पढ़ा हूँ, मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ। तो मेरे को ये पता है कि गोरखपुर में क्या चलता है, लखनऊ में क्या चलता है और दिल्ली में क्या चलता है। तो मेरे को पर्सपेक्टिव जो है, एक बंदा जो सिर्फ पूरी लाइफ बैंगलोर में रहा है उससे ज्यादा है। सच है कि नहीं है? आप सबके लिए बात सच है कि नहीं है? ये आपकी स्ट्रेंथ है। बीकॉम आप यहां से करो, वहां से करो, कहीं से करो यार, सेम बुक है, सेम डिग्री है, सबका वही पन्ना। डजंट मैटर, आपकी जर्नी मैटर करती है। अपनी जर्नी को अपना आंसर बनाओ। कुछ तो है, ढूंढो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर दिन सुबह उठ के पूछो वाई एमबीए। सबका रीजन अलग है, सबकी जर्नी अलग है। टीवी एस्पिरेंट की तरफ सोचो। और स्पेसिफिक में जाना है तो फिर पूछो, और इसके आगे तो फिर मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज कोई अगला क्वेश्चन करते हैं। No, sir. Thank you. Sir, how do we justify drop here in case we don't have any other certificates or? मतलब ऐसा जस्टिफिकेशन तो होना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। मतलब रेड फ्लैग की तरह ट्रीट कर रहा है कॉलेज तो फिर मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए तो कभी डेटर मत होना, मतलब डरना मत इस चीज से। कभी भी आपको ये क्वेश्चंस अनसेटल नहीं करने चाहिए कि आप ड्रॉप क्यों कर दिया, ठीक है भाई। आज की डेट में पैंडेमिक के बाद ड्रॉप करने के कितने रीजन हो सकते हैं किसी के? कोई गिनती है रीजंस की? No. पिछले साल मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि अप्रैल में मेरे घर में कुछ हो गया, अब मैं नहीं बताने की कंडीशन में हूँ। सबकी अपनी अपनी स्टोरी, मैं ही नहीं कह रहा हूँ आपके साथ हुआ है। बट आज की डेट में पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में तो 2020 या 21 में ड्रॉप करने के तो हजारों रीजंस हैं। इसको एज अ नेगेटिव तो लो ही मत। आपका जो जेन्युइन रीजन था आप बता दो, अनलेस आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे, आप सर मैं तो उस समय आईसीएस के कैंप में चला गया था, ऐसा तो है नहीं। नहीं कुछ तो कर रहे होगे ना, जो कर रहे थे बता दो। सर, लाइक तैयारी कर रहे प्रिपरेशन थे। फॉर एंट्रेंस एग्जाम, तो वो एक रीजन था। तो एक साल में सबका एमबीए में हो भी नहीं सकता ना इंडिया में तो। हाँ, लाइक अगर गुड अच्छी कॉलेजेस तो नहीं। सबका हर साल होने लग जाएगा, इतने तो कॉलेज नहीं है लोग जितने हैं। हर साल उतने लोग का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। आईटी में हो सकता है, आईटी में 2 अटेम्प्ट होता है, आईएएस में 5 कितना 4 अटेम्प्ट होता है। तो एमबीए में 2 अटेम्प्ट नहीं हो सकता, वो तो अनऑफिशियल है ना। 5 अटेम्प्ट तो एमबीए में कोई कहाँ बोलता है। आपने उस साल क्या किया, आप अगेन थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बात करो, ठीक है। उस साल तुमने क्या किया? सिर्फ तैयारी की हो, देखो दोस्त, वो तो फिर थोड़ा सा तुम बी प्रिपेयर्ड की, थोड़ा या तो ग्रिल हो जाओगे या तो खुद तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने पूरी तरह से जो पॉसिबिलिटी सारी एक्सप्लोर नहीं की। लेट्स बी ऑनेस्ट देयर, लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर आपने सच में सिर्फ तैयारी की है तो यानी कि आपने खुद को पुश नहीं किया है। यस सर। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देके बोल देता हूँ। मैं जब 2011 में बीटेक किया और मैं जून में बीटेक कंप्लीट करके दिल्ली चला गया था एमबीए की तैयारी करने। पर मेरे से थोड़ा सा मेरे को बेचैनी बहुत थी, तो मैंने एक ऐसी छोटी सी एजेंसी ज्वाइन कर ली। वो मुझे 6,000 रुपये देती थी उस समय कंटेंट राइटिंग करने का, ठीक है। और 8,000 मेरा किराया था, 6,000 रुपये मुझे मिलता था। तो मैं घर से 4-5 हजार रुपये लेके जो है दिल्ली में रजौरी गार्डन के पास में रहता था। 2 महीना 3 महीना मैंने किया और बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया और मैं गोरखपुर आ गया। गोरखपुर में एक कोचिंग होती थी महिंद्रास करके, बैंकिंग पढ़ाते हैं महिंद्रा, वहां पढ़ाता था मैं। वहां मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। वो 13,000 देते थे और 6 दिन आना होता था। 7 AM to 7 PM की जॉब थी। 7 AM to 7 PM एंड आई वाज 23 एट दैट टाइम, ठीक है। मैंने फिर 2 महीने पढ़ाया और फिर साथ में तैयारी भी की, मैंने एमबीए की भी की तैयारी। तो मैं ये करके काम चला लिया, ना पैसे के लिए कर रहा था, बस मेरे को था कि कुछ करते रहूंगा, कुछ भी करते रहूंगा यार, छोटा मोटा सीखूंगा ही। बर्बाद मतलब कुछ नुकसान नहीं होना है इसमें,
सीखूंगा, ठीक है। तो जर्नी बनाना जरूरी है। आज इस साल नहीं होता है तो ये इंश्योर करना कि अगले साल ऐसा कुछ कर लो, ठीक है, साल भर में Plus कुछ कर part लेना। time and like something graduation certificate like diploma courses or something should be. ठीक है sir. Thank you sir. Any other questions? So, Shank, what was your special- question? सॉरी एक सेकंड अर्पित, मैं भूल गया हूँ कुछ लोग के क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या था? आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या पूछा था? बस वो आप आंसर कर चुके कि व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट ईयर और किस तरह रहता है, ब्रांचेस क्या रहती है। ठीक है, थैंक्स। ओके, गो अहेड अर्पित। स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक कौन से मतलब क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ भी आए, अगेन देखो, एक तो इट्स टू अर्ली फॉर यू टू नो। हमको पता हो तो हम जाते ही क्यों एमबीए करने, ये तो वही बात हो गई। और डिफरेंस क्या हुआ बीटेक और एमबीए में अगर पहली स्पेशलाइजेशन पता हो गई? अनलेस स्पेसिफिक कोर्स में आप जा रहे हो, एबीएम में जा रहे हो, एचआर में जा रहे हो, रूरल में जा रहे हो, आरएम, एबीएम, एचआर, इरमा, माइका, जो स्पेसिफिक मार्केटिंग कॉलेज है जैसे, है ना, तो आपको पता है कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, आगे पता है ये करेंगे, एबीएम करने जा रहे हैं, तो अब क्या स्पेशलाइजेशन हो गया स्पेशलाइजेशन। बट अगर आप जनरल मैनेजमेंट करने जा रहे हो, पीजीडीएम जनरल करने जा रहे हो, तो ये क्या उसका एक्सपेक्ट करना कि आपको पता होगा कि आप क्या स्पेशलाइजेशन करोगे, ये उनका पर्पस नहीं होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपका कुछ रुझान, कुछ आपका इंक्लिनेशन है, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस बारे में एक आंसर प्रिपेयर कर लो। आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे मार्केटिंग, आई थिंक रुद्रा ने शायद बोला था ना मार्केटिंग, किसने पूछा मार्केटिंग के लिए? रुद्रा ने पूछा था शायद, हाँ। तो आपको जो भी स्पेशलाइजेशन अच्छा लगता है, और हाँ, अब वाई एमबीए के आंसर अगर आपका इतना सॉलिड हो गया तो आप स्पेशलाइजेशन का भी आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। बट उसके पहले मत कर लेना, पहले ये मत आंसर प्रिपेयर कर लेना कि वाई स्पेशलाइजेशन, उसके बाद पता ही नहीं कि वाई एमबीए। क्योंकि आज की डेट में आप मेरे से पूछोगे मेरा स्पेशलाइजेशन क्या था, तो वो था अकाउंट प्लानिंग। अकाउंट प्लानिंग का नाम सुना है स्पेशलाइजेशन का? नहीं सुना होगा, क्योंकि मार्केटिंग कॉलेज था मेरा माइका, उसमें होते हैं 5 स्पेशलाइजेशन: मीडिया प्लानिंग, अकाउंट प्लानिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च एंड डिजिटल मार्केटिंग। ना मैं आज अकाउंट प्लानिंग कर रहा हूं, ना मैं ब्रांड प्लानिंग कर रहा हूं, ना मैं मीडिया प्लानिंग कर रहा हूं। मैं कुछ अलग ही कर रहा हूं मैं, और आप सब अलग करोगे, अलग ही करोगे। इतने स्पेशलाइजेशन नहीं है आज की डेट में, जितनी जॉब्स हैं, इतनी तेजी से हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज ही नहीं होती है जितनी जॉब्स हो गई हैं, ठीक है ना। ब्रांड मार्केटिंग होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इस समय सब लोग को प्रोडक्ट मार्केटिंग में जाने का बड़ा शौक है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के कोर्सेज कराता है अपग्रेड, और ये सब पे सारे बड़े कोर्सेज होते हैं। द एजुकेशन इज नॉट इवॉल्व टू दैट लेवल। तो आप कितना भी आंसर बना लो, आप करोगे कुछ और, बट आपका रुझान जिस तरफ है उस तरफ आप एक आंसर बना के जाओ, ये बात सच है। फिर एग्जाम्पल भी लेके जाओ अपनी जर्नी में से, कैसे तुम्हें लगा कि तुम इसके लिए फिट हो, क्यों तुम्हें लगा? क्या तुमने कॉलेज में फेस्ट कराए थे कि तुम्हें लगा तुम मार्केटिंग अच्छी करते हो या सेल्स अच्छी करते हो? क्या 5 लाख रुपए तुमने इकट्ठा किए होंगे, स्पॉन्सर लाए होंगे अपने कॉलेज के लिए, फेस्ट के लिए, तभी तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि तुम सेल्स करते हो? कोई तो एग्जाम्पल होगा लाइफ का जो तुम्हें बता रहा है कि तुम कुछ तो किए होगे, तुम किट्टी पार्टी कराए होगे अपनी मम्मी की 200 लोग की, केटरिंग करवाए होगे उसकी, बहुत बड़े ऑपरेशंस मैनेजर होगे तुम, शादी कराए होगे 4 लोग की फैमिली में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और क्या फ्रेशर की बात, और क्या हो जाएगा भाई इससे ज्यादा? कॉलेज के फेस्ट के अलावा और अपने मोहल्ले के पंडाल लगवाने के अलावा भाई, हर आदमी कहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा? इतना ही है हमारा लिमिटेशन, इतना है। अनलेस आपने एक्चुअली में काम किया हुआ है, आप गए हो, बिजनेस एनालिस्ट का रोल था आपका, बड़ा लैपटॉप लेके जो है जॉब कर रहे थे कहीं पे बैठ के। मोस्ट पीपल हैव दीज लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी में ही आंसर है। आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो, कितना परसुएसिव होके बोलते हो कि यार ये तो है, मेरे को आता है, मेरे को पता है। मैं तो क्विजिंग क्लब चलाता था कैंपस में, मैं तो हाँ, 100 बच्चे आते थे, क्विज मैं कराता था, 20 क्वेश्चन बना के ले जाता था हर महीने, यही करता था। आप क्या करते थे? आप जो करते थे उसमें से अपना आंसर बनाओ, जो नहीं करते थे, जो करना चाहते हो उसमें से आंसर मत बनाओ। ओके सर। और झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 35 लाख रुपए लाइन पे लगा हुआ है, झूठ बोल के ग्रेजुएशन हो ही चुका है, आगे मत करना। और कोई क्वेश्चन?
Sir, during my drop year, sir, I attempted IAS. So the next follow-up question would be, why did you drop IAS and switch to MBA, sir? How do I answer that? लिखा है क्या सीवी में? Sorry, sir. सीवी में कहीं लिखा हुआ है क्या ये? मतलब how do you expect this question to come? Sir, everybody told me to that this is the question you should be prepared for. But Why I उनको switched कैसे to MBA? पता कि तुम क्या कर रहे थे? मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? Yes, sir. Is it mentioned In somewhere? case they... No, sir. अब देखो, तुमको इसका आंसर नहीं पता है तो अवॉइड करो ये पूरा एरिया, ये पूरी टेरिटरी अवॉइड करो अगर तुमको खुद आंसर नहीं पता है तो। बट तुम्हें आंसर पता है ना इसका, तो वो आंसर दे देना। नहीं, अगर देखो मेरी बातें थोड़ी क्रिप्टिक लग सकती हैं, मैं ऐसे देखो हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, मैं इसलिए हंसी मजाक में बोल रहा हूँ ताकि 1.5 घंटे की क्लास लंबी ना लगे। मैंने 1.5 घंटे की क्लास में थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा क्रिप्टिक इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें आंसर पता है तो वो आंसर बोल देना, और अगर आंसर नहीं पता है तो बारे में बात मत करना। सर पर वही है कि आंसर कन्विंस करता है कि नहीं, उसकी इशू आ जाता है। क्राइम तो है नहीं ट्राई करना दो चीजें। अब जैसे एमबीए भी आदमी करता है तो केवल कैट तो देता नहीं है, एनमैट भी दे देता है, जैट भी दे देता है। तो क्या मतलब आईएम के इंटरव्यू में जाए तो बोले तुमको कहाँ से कॉल आई है? सर मुझे एक्सेलराई से कॉल आई है और आईएम से कॉल आई है। जैट क्यों भर रहे हो? तुम्हें आईएम में आने का मन नहीं है क्या? बिल्कुल मन है सर, लेकिन पता ही नहीं था ना कि नहीं होगा या होगा। तो क्या ट्राई नहीं कर सकता है बंदा? बिल्कुल ट्राई कर सकता है। यहां से भी तुम सोसाइटी की सेवा करने निकले हो, वहां से भी सोसाइटी की सेवा करने निकले थे। उस समय की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, तुम्हारी मेंटरिंग अलग थी, तुम्हारा ग्रुप अलग था, तुम्हारी फैमिली में जो तुम्हें बताया गया, तुम्हें जो सही लगा, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, गलतियां करके सीखा ना तुमने, सीखा, गलत डिसीजन लेके सीखा। क्या क्या दिक्कत है? गलत डिसीजन लेना बैन है क्या? कोई बैन नहीं है। गलत डिसीजन लेना, टाइम दे के आगे बढ़ना, ठीक है, ड्रॉप ईयर ले लेना, उस समय कोई छोटी मोटी जॉब कर लेना, या किसी मजबूरी के से जॉब ना कर पाना, ऑल इज फाइन। यही तो पर्सनालिटी है यार, यही तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, यही पर्सनालिटी है। अब पूछो कुछ और। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। मैं जानता हूँ 90 मिनट्स की क्लास लंबी हो जाती है कभी कभी, इसलिए इससे ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है? एब्जॉर्ब करने के लिए इतना काफी है। आई होप मैंने डिसेंट इन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आंसर कर दिए हो। और कुछ अगर मेरे स्पेसिफिकली पूछना है तो पूछ लो मेरे से, ये कर सकते हैं, अब मेरा इंटरव्यू ले लो। यस सर, लाइक है सर, लाइक लेऑफ्स के रिगार्डिंग है सर, लाइक गूगल्स में, और जो हो रहा है आप गूगल के साथ ही काम कर रहे हो, तो लाइक यानी लाइक पीपल आर सेइंग दैट ये एक चेन है जो लाइक कंपनीज को मार्केटिंग और अपने लाइक लाइमलाइट में आने के लिए ये लोग कर रहे हैं। लाइक आईसीआईसीआई में देखो भी ये रिपोर्ट आ रहा है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ओके, आई अंडरस्टैंड But सर, it's ओके फाइन। yeah, it is a difficult time. It is a difficult time Okay. for so me and my wife both are in Google, so it is a difficult time for us, no doubt about that. Some of our known people in the US had to get impacted. So it is difficult, but at the same time, what I would like to say, and even though it is on record, I can say this is never attach yourself to a company. Okay, it's a great company to work for. I've learned a lot. It has given me a lot, but never attach your skill set to a college or a company. कॉलेज आपसे है, कंपनी आपसे है, आप कॉलेज से नहीं हो। आई मीन आप कॉलेज से हो, बट आप कॉलेज की वजह से नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी की वजह से हो। आप उस जर्नी में लोगों से सीखो, टीचर से सीखोगे, एक्सपीरियंस से सीखोगे, जॉब पे सीखोगे, फैकल्टी से सीखोगे, बैचमेट से सीखोगे, ठीक है? और एट द सेम टाइम आप कुछ गिव बैक करोगे। जिस भी ग्रुप में आप रहोगे, आप वहां पर कुछ गिव बैक करोगे, और गिव बैक करने के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप गिव बैक नहीं कर रहे हो किसी फॉर्म में, तो इस बारे में भी सोचो। ब्रिंग अ सोशल एंगल टू योर स्टोरी। यू ऑल हैव इट, बट डिस्कवर इट बेटर। ओके,
आपके एमबीए के आंसर्स में एक सोशल एंगल होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके, यू हैव टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। आप कैसे गिव बैक करते हो वो आपके ऊपर है। अपने कॉलेज से कनेक्टेड हो, अगले साल के फेस्ट पे जाने का प्लान कर रहे हो, अपने टीचर्स से पूछते हो, कुछ भी करते हो, बट आपको गिव बैक करना पड़ेगा। Okay, sir. Any other questions Thank you. about me? हो गया? Cool. I hope you guys had a good time. I really had a good time. मेरे को अच्छा लगता है सेशंस लेना ये वाले. And all the best to all of you. I hope all of you convert the college of your dream. कॉलेज में जाके कॉलेज ऑफ योर ड्रीम खत्म हो जाएगा, फिर नया ड्रीम ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बस 1.5 महीने में तो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नया ड्रीम ढूंढना। बट डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। ऑल द बेस्ट। ठीक है, Thank you. Thank you very much, Thank you, sir. sir. Good evening. Thank you very much, sir. चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।